ویلکم ٹو چولو آسمان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیال رکھنا. میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ناجیہ. اور ناجیہ, ہم ہنا کے آپ سوال کا جواب دے رہی تھی. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کئی اسکنز ایسی ہیں جو جلدی ٹین ہو جاتی ہیں, کئی اسکن ہے جو جلدی برن ہو جاتی ہیں. ان کی اسکن ان میں سے ہوگی جو جلدی ٹین ہو جاتی ہے. اس کے لیے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پیک دھوپ کے آورز میں باہر نہ نکلیں. دن میں گھر میں رہتی ہیں یا باہر رہتی ہیں, آپ سن بلاک لگائیں SPF 60 اینڈ ابو کا, جو کہ آئل فری بھی آتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باہر نکلیں تو اپنے آپ کو زیادہ پروٹیکٹ کریں. وائٹ برم جو ہیٹ اینڈ کیپس آتی ہیں, دوپٹہ آگے کر کے لے کے نکلے, گاڑی میں ہیں تو شیڈز لگائیں. اس طرح کے پروٹیکٹیو میجرز کرنے ضروری ہیں. ڈرائیو کر رہی ہیں تو ہاتھ میں وائٹ کلر کے گلوز پہنے. ہم لوگ یہ پروٹیکشن نہیں کرتے اور پھر چونکہ ان کی اسکن اس طرح کی ہے تو وہ زیادہ جل رہی ہے. سیکنڈلی ایلو ویرا جیل کا استعمال. اب آج کل یہ ہو گیا کہ جی جس کے گھر میں اگ رہا ہے وہ توڑ توڑ کے سب کو دے رہی ہیں, باہر سے لوگ خرید رہے ہیں. وہ ایلو ویرا جیل ڈائریکٹ لگ رہا ہے. ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ کئی لوگوں کو, میرے پاس جو پیشنٹس آئے, انہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس کے کیسز رپورٹ ہوئے کہ جب انہیں چکنی وہ جیل لی فوراً سے اس کے اوپر لگا لی وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ یا وداؤٹ اینی تھنگ. تو میرے حساب سے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کی سینسٹیوٹی کی کوئی ہسٹری ہے, آپ کو ایگزیما ہے, آپ کی اسکن ڈرائی ہے اور آپ کو ہر چیز سے, کاسمیٹک سے, ان سب چیزوں سے بہت جلدی الرجی ہو جاتی ہے, تو برائے مہربانی ایسی سب چیزوں سے کانٹیکٹ جو ہے وہ اوائڈ کریں, کیونکہ وہ اتنا لیسی اور اتنا چکنا ہوتا ہے کہ وہ اسکن سے اتر نہیں رہا ہوتا اور وہ آپ کی اسکن کو اریٹیٹ کرتا ہے. تو آپ سوچیے کہ آپ اس کو کیسے ریموو کریں گی. تو برائے مہربانی اس طرح کی جو ٹوٹکے, تبھی کہا جاتا ہے کہ ٹوٹکا اور علاج میں یہی فرق ہوتا ہے کہ علاج آزمایا ہوا ہوتا ہے. ایک گولی آپ نے بخار اتارنے کے لیے نہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس سے بخار ہی اترے گا, لیکن ان ٹوٹکوں کی کوئی وہ نہیں ہوتی. آپ کے پاس نا اوتھینٹسٹی ہوتی, کسی کا دل چاہے اس میں کچھ ملا دے, کسی کا دل چاہے کچھ ملا دے, دوائی میں کوئی چیز نہیں مل سکتی. اس لیے جب کوئی بیماری ہو تو یہ ٹوٹکوں کا کلچر ذرا ختم کر کے دوائیوں کی طرف جائیں, کیونکہ ہر چیز کا علاج ہوتا ہے. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ٹوٹکے بتاتی ہوں تو اس پہ آپ دھیان نہ دیں. ڈاکٹر ناجیہ جو بتاتی ہیں آپ اس پہ دھیان دیا کریں. اچھا ناجیہ, ہم مولز کو آپ ڈیفائن کریں گی کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے مولز ہوتے ہیں. اب ایک کال آ چکی ہے, مسز نسیم بات کریے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی, کیا کہیں گی مسز نسیم؟ میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی. بہت شکریہ. آمنہ, آپ کا بہت زبردست پروگرام ہے. کافی عرصے سے میں پروگرام دیکھ رہی ہوں آپ کا, لیکن اتنے عرصے بعد اب کال ملی ہے میری. چلیں, آپ لکی ہیں کہ میں شکریہ ادا کروں گی کال ملانے کا ان لوگوں کا. اور یہ کہوں گی میں کہ ڈاکٹر صاحب جو بیٹھی ہیں, ان سے مجھے کچھ سوال کرنا تھا کہ میں ایک کینسر پیشنٹ ہوں. اچھا. لیکن میری اس کے بعد نا کیمو ریڈیشن وغیرہ یہ سب ہونے کے بعد نا میرے فیس تھوڑا سا عجیب سا ہو گیا, ڈیمیج سا جیسے ہونا چاہیے نا, اس طرح سے ہو گیا ہوا ہے. تو کچھ آپ میرے لیے بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. اور دوسری بات آمنہ, مجھے آپ سے گفٹ چاہیے بھائی. بہت عرصے سے میں کال کر رہی ہوں لیکن نہیں ملی. میں نے کہا میں کہوں گی آمنہ مجھے گفٹ دیں پلیز. اچھا چلیں, میں دیکھتی ہوں. اچھا, آپ میرے سوال کا ضرور جواب دیجیے گا, ان سے کہیے گا, کیونکہ مجھے بتائیے کہ آپ کے فیس کے اوپر کیا ہوا ہے کیمو تھراپی کے بعد, یہ پوچھنا چاہ رہی ایگزیکٹلی. میرا فیس نا جیسے بلیک سی جھائیاں سی سائڈوں میں, ٹک پر, اور کچھ عجیب سا مطلب ہو گیا ہے نا کہ بلیک وائٹ. تو آپ کی کتنا ٹائم ہو گیا ہے یہ جھائیاں, یہ کیمو تھراپی ختم ہوئے ہوئے؟ مجھے تو 6 سال ہو گئے, لیکن پھر دوبارہ مجھے ہو گیا یہ سلسلہ نا, وہاں سا ہو گیا دوبارہ. تو لیکن یہ فیس میں نا بہت ہی زیادہ خراب ہو گیا. اب میں کوئی چیز لگاتی بھی ہوں نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اور مزید خراب نہ ہو جائے. جی بالکل, اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ذرا جس بھی سٹی میں ہیں, اگر آپ کراچی میں رہتی ہوں, کراچی میں, تو آپ ضرور اسکن اسپیشلسٹ کو دکھائیے. اگر آپ مجھ تک آنا چاہتی ہیں تو مجھے آ کر بتائیے, کیونکہ چیزیں دیکھیں, ان تمام جو کیمو تھراپیوٹک ڈرگز ہوتے ہیں ان کے بہت سارے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں جو اسکن کے اوپر آتے ہیں. کافی ویسے آپ ہر جگہ پروگرام میں آ رہی تھی تو میں کال کر رہی تھی کہ آپ سے نہیں, ضرور آپ میرے کلینک آئیے اور میں دیکھتی ہوں. انشاءاللہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کچھ بہتری آ جائے, لیکن اس میں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ساری دوائیاں کھاتی ہوں نا. ہاں, نہیں, اس میں ہمارے میں تو زیادہ لگانے کا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ ضرور آئیے اور میں آپ کو دیکھ کے انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ دوں گی. تھینک یو کال کرنے کا. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ کنٹرول روم میں اپنا ایڈریس دے دیں, اگر میں نے آپ کو بھجوانا ہوگا ایڈریس تو میں بھجوا دوں. تھینک یو, بہت شکریہ. دیکھیں, ان کی یہ بات واقعی بہت ویلڈ ہے کہ جب آپ کیمو تھراپی سے گزرتے ہیں تو بہت قسم کی ڈرگز آپ کی باڈی میں سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, چاہے وہ جنرلی آئیں چاہے وہ فیس کے اوپر اسکن پر آئیں. جب بھی کبھی اس طرح سے ہو رہا ہے تو دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ کیونکہ فیز ایک گزر چکا ہے اور اب اس کی کمپلیکیشنز ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر تو بندہ کنٹینیوسلی کیمو تھراپی پہ ہے تو اس وقت ہم ایڈوائز نہیں کریں گے کچھ بھی کرنے کے لیے. ونس ہی اور شی از تھرو دیٹ فیز, تب ہم جا کر ان کو کوئی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں, جس میں ایسے پیلنگ ایجنٹس آتے ہیں, لگانے کی کریمز آتی ہیں, ان میں کوئی بھی ٹیرٹوجینک یا کوئی کارسینوجینک کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. اور اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے کہ کتنی دیر تک, کب تک آپ اس کو ٹھیک لمٹ تک ٹھیک کر سکتے ہیں, بیکاز
उसकी कॉजेटिव फैक्टर्स काफी डिफरेंट है। तो ये चीज है, लेकिन डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और ये चीज कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि मोल के लिए क्या चीजें प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है। पहले मोल टाइप, लेकिन मोल टाइप के लिए ये है कि कई उभरे हुए होते हैं, कई जो है वो बैठे हुए होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनके अंदर वक्त के साथ साइज बढ़ता है, उनमें ब्लीडिंग या स्क्रैचिंग के आपको सिम्टम्स नजर आते हैं। जब आप स्क्रैच करते हैं तो ब्लीड होता है। अगर कोई मोल का साइज या कोई चीज अगर आपकी चेंज हो रही है या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन यही है। आपका मोबाइल बज रहा है और इसको ऑफ कर दें। हाँ, ये तो ऑफ ही हो जाए। नहीं, अच्छा, तो ये ऑफ कर दें बिल्कुल। नाजिया और मैं जो हूँ ना, अपने मोबाइल के बारे में बड़े जो है। चले एक सेकंड, अभी वो ऑफ हो जाता है। हाँ ठीक है, अच्छा अब ना करो। अच्छा ठीक है, अभी मैं कर देती हूँ। मैं तो अपना ऑफ ही करके नहीं, ये हो गया चले बिल्कुल। अच्छा, तो इसके अंदर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि जब हम इस मोल्स को देखें कि इनकी कोई साइज में कोई ब्लीडिंग या स्क्रैचिंग या कुछ भी हो रहा है, इमीडिएटली उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की आदत है, उनको पालते हैं उन चीजों को, पालना बहुत शौक होता है। कोई मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। असल में जब भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहा है कि वो मोल कैंसरस हो रहा। और स्किन कैंसर ये तमाम कैंसर से सबसे ज्यादा टॉप पे है कि जिससे आपके सबसे ज्यादा जो है वो डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी और वो ब्लड की उसमें जाकर बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए प्लीज बी वेयर, किसी भी मोल में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इमीडिएटली रिमूव करा लें, क्योंकि आपकी पूरी जान, आपकी जिंदगी जो है वो एक मोल से कहीं ज्यादा कीमती है। तो हम लोग जो सुस्ती बेजा गलत जगहों पे कर रहे होते हैं वो ना करें और इसका ख्याल करें। क्योंकि देखें बाहर के मुल्कों में, खास तौर पे जिन लोगों का हमारे मुल्क में भी स्किन कलर बहुत फेयर है, बहुत वाइट है, तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो उन पे, चूंकि स्प्रैकलिंग जैसे आपने शुरू में कहा, और मोल्स बनने की टेंडेंसी कहीं ज्यादा होती है जब वो धूप के साथ कांटेक्ट में आते हैं और उनके एक्सपोज एरियाज में काफी बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ फैमिली टेंडेंसी भी होती है। और अगर उनके फैमिलीज में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में स्किन कैंसर था तो माइंडेड के उनको बहुत ज्यादा इसको हर 6 मंथ या एनुअली इसको चेक करना जरूरी है विद द डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास जाना। हर एज में मोल्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या मोल्स एज के साथ कुछ चेंजेस आते हैं? देखिए उम्र बढ़ी है तो उसमें बढ़ते भी जरूर है। देखिए कुछ तो एज स्पॉट्स हैं वो आते हैं, ठीक है ना, एज के साथ जो बढ़ते हैं। और कुछ चीजें जो आती हैं वो ये होती हैं कि जिसमें अंदर आपके अपने मोल के साइजेस और उनके नंबर्स बढ़ते हैं। तो आपने उन सबको देखते रहना है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। असल में लोगों के फेस पर भी आते हैं और लोगों की बॉडी पर भी आते हैं, और प्लस इट डिपेंड्स अपॉन द सन एक्सपोजर एंड अदर बॉडी फैक्टर्स एज वेल। तो अगर आप सन एक्सपोजर अपना कट डाउन रखते हैं बहुत ज्यादा, उसके ऊपर अगर आपको मोल्स है और आप नहीं बहुत ज्यादा धूप में निकल रहे होते तो वो काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर आप उसको ना निकालें, कई लोगों को होता है, अब आजकल लेजर्स आ गए, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से आप लीजिए, निकाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने रखना है तो फिर आप उनका ख्याल रखें, देखिए कि कोई चीज तो नहीं हो रही सिम्टम्स, वरना अमूमन कोई बड़ा बढ़ रहा है मोल, कोई चीज है तो अब निकलवा दें, ऐसी कोई मसले की बात नहीं, आजकल बहुत आराम से लेजर से निकल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कैंसरस जो हो जाते हैं मोल्स, उसका फिर कैसे, उसको भी ट्रीटमेंट उसका खत्म हो जाता है कि सबसे पहले आपने उसको कैंसर को, जो मोल है उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज करके वहां से निकालना है, उसकी बायोप्सी करनी है। बायोप्सी के अंदर जो उसके फीचर्स आते हैं कि वो मेलेनोमा है, कि वो बेनाइन था, कि वो मेलिग्नेंट था, वो किस डिग्री पे गया, किस डेप्थ पे था, उसकी पूरी एक स्टडी है जो हमें पढ़ाई भी जाती है, हमें एग्जाम्स में भी पूछी जाती होती है कि किस तरीके से किस सेक्शन पे क्या फीचर्स के साथ आप उसको देखेंगे। दैट्स प्योरली क्वाइटेड मतलब डॉक्टर्स अफेयर है। लेकिन थिंग इज दैट कि जब भी आप उसको पेशेंट को उसको साथ कंसल्टेशन में रखते हैं, उसको बताते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसकी कीमोथेरेपी की जरूरत है। एज आई टोल्ड यू कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्प्रेडिंग जो कैंसर है वो मेलेनोमा है और उसका ख्याल रखना जरूरी है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मोल की अहमियत इन सब चीजों से ज्यादा। नाजी, पहले मुझे ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि पता कैसे चलता है कि ये मोल है या कैंसर है? देखिए ये इसलिए इसके सिर्फ यही सिम्टम्स होते हैं कि आपको आपके मोल के कलर में फर्क आएगा। पहले अगर वो लाइट हो जाएगा, वो अगर लाइट है तो वो उसका कलर चेंज होकर डार्कर टोन की तरफ जाएगा, वो साइज में बहुत तेजी से फैल सकता है और उधर खारिश हो सकती है। इतनी खारिश की जब आप खारिश करने लगते हैं तो आपको ब्लीडिंग होने लगी, वो उसके अलार्मिंग साइन है। किसी भी ऐसी चीज को फिर आप बॉडी के ऊपर अपने ना रखें और इमीडिएटली उसको एक्सरसाइज करें। और अगर उसके बाद वाकई वो फैल चुका हुआ है, और खाली मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि तिल की या सिर्फ इन चीजों का स्किन कैंसर नहीं, नाखून का भी कैंसर है। ओह माय गुडनेस, नाखून बिल्कुल इसी तरह हो जाता है, क्योंकि मैंने खुद वो डायग्नोज किया था अपने एक पेशेंट के अंदर। अच्छा। बिल्कुल जी, और ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये मेरे दुपट्टे का कलर है, इस तरह का एक नेल आपका हो जाएगा। मतलब ऐसे जैसे फंगस लग रहा होता है, फंगस से भी कहीं ज्यादा डार्क कलर होता है और वो एक ही नेल होता है जो हो जाता है। और आपने मैंने डायग्नोज किया था। उसकी वजह ये थी कि आपको पेशेंट के सिम्टम्स रिलेट करने होते हैं, इसीलिए जब आप डॉक्टर पेशेंट को टाइम देता है, उससे सवाल करेगा, तभी लगेगा, पता चलेगा ना कि वो क्या है। फंगस कह के वो हो सकता है आप उस नेल
नेल के लिए कोई भी मेडिसिन दे देती, एंटी फंगल दे देती तो वो तो पेशेंट वही खत्म हो जाता। तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंस होती है कि आप देखें कि उसको सिस्टमिक साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं, क्योंकि वो मेरा पेशेंट जो था वो पिछले 1 महीने से खून की उल्टियां कर रहा था और उसको भी कोई ख्याल नहीं था, बिकॉज वो नॉर्दर्न एरिया से कहीं से आया था। जैसे ही मैंने उसके नेल की बायोप्सी करवाई और वो मेलेनोमा निकला, उसी वक्त से लेकर उसकी उंगली के अंदर जख्म बनना शुरू हो गया और फिर उसके सिम्टम्स रिलेट हुए। लेकिन हमने जिस वक्त उसको कैच किया था, मैंने उस वक्त, अल्लाह का शुक्र है वो स्टेज था कि उससे वो रिवर्ट हो गया, उसके डायग्नोसिस हुई, उसकी उंगली, बस एक नुकसान हुआ कि उसकी उंगली कटी, लेकिन उसकी जिंदगी बच गई। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है। ये देखे ना, आपने डायग्नोज कर लिया, अगर वो एंटी फंगल लगाता रहता, बिल्कुल लोगों को नहीं पता चलता कभी कभी, और डॉक्टर्स भी तो आगे से आप देखें ना कि और ही ज्यादा आपको बेवकूफ कर रहे होते हैं कि अच्छा ये लगा लो, ये जल्दी में आपने देख लिया, आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया, और हो सकता है कुछों को ये होता है कि अभी दवाई दी फिर अगले हफ्ते आना पड़ेगा। आजकल नहीं आसान नहीं कर सकते, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप ये चीज को अंडरस्टैंड करें, इसको पहचानें। इसीलिए हम कहते हैं कि आप उन डॉक्टर्स के पास जाएं जिनको कुछ पता है, जिनको कुछ आता है, ना कि आप किसी के पास भी चले जाएं जो कि। अच्छा नाजिया, ये मुझे बताएं एक बात कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई ऐसा केस आया हो कि मोल हो और एकदम से गायब हो जाए एज के साथ साथ? देखिए, एज के साथ गायब होने वाले कुछ मोल। अच्छा, एक और कॉल है हमारे साथ, बात करते हैं। रूमी बात करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक बड़े यू, शौक से आपका शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। मुझे आज डॉक्टर नाजिया से बात करनी है। हाँ कीजिए। जी रूमी। जी डॉक्टर नाजिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। अभी 1 मंथ पहले मेरी डिलीवरी हुई है, मेरी बेबी हुई है जी, और मगर मेरे फेस पे ना काफी स्पॉट आ गए हैं, ब्लैक और काफी चेहरा छाइयों वाला भी हो गया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, बताइए मुझे। जी, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या काफी खारिश रहती थी और ड्राई स्किन थी आपकी? नहीं, स्किन तो नॉर्मल है, मेरी कुछ ड्राई नहीं है, मगर खारिश तो मुझे कभी भी नहीं हुई। कभी भी नहीं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि कई खवातीन को, जैसे इन्होंने बताया, प्रेगनेंसी के हार्मोन जब अपसेट करते हैं बॉडी को तो वो उनके ऊपर दाग और धब्बे छोड़ते हैं। बॉडी फोल्ड जैसे अंडर आर्म, गर्दन, चेहरा, जहां पर भी वो जगह होती है वो काली होना शुरू हो जाती है, उनका कलर, स्किन टोन काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसके लिए ये तैयार रहें कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस वापस होते हैं। अब जैसे खवातीन डिलीवरी से फारिग होती है, उनका ध्यान अपने ऊपर आ जाता है कि जी मुझे जल्दी करना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, लेकिन ऐसा इस तरह से उनके अख्तियार में नहीं होता। ठीक है, आप डॉक्टर से जरूर राब्ता कीजिए, सब कुछ है, स्किन स्पेशलिस्ट आपके लिए काफी कुछ करेगा, लेकिन इन चीजों को ठीक होने में टाइम लगेगा। इतना आसान नहीं है कि फौरन चीजें हो जाए, तो जरा सा टाइम दीजिए। प्लस मॉइस्चराइज करें अपने आप को। जैसे बॉडी के स्पॉट्स हैं, उनके लिए जरूरी है कि हर दफा नहाने के बाद, दिन में पहले तो 1 से 2 दफा नहाएं और अपने कपड़ों को नहाने के बाद अपनी बॉडी पे पूरा मॉइस्चराइजर लगाएं। ये जो स्पॉट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उससे फेड होंगे जो बॉडी के हैं। अब स्क्रबिंग कर लें ट्वाइस अ वीक, उसके बाद अच्छी तरह जो शावर जेल से नहाएं। फेस के लिए ऑब्वियसली सनब्लॉक की जरूरत है। इस तरह की क्रीम्स आती हैं, ब्लीचिंग क्रीम्स, जो ये आम नहीं, जो हम लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, इवन बनवा भी रहे होते हैं, वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा केमिकल पीलिंग आती है, इस तरह के लेजर्स आते हैं, वो सारी चीजें आहिस्ता 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 इंट्रोड्यूस करनी होती है। कुछ नेचर का टाइम, कुछ हमारा टाइम, मिल मिला के ये आहिस्ता 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 इसको कम करता है। किस लेवल तक कम करता है ये इनके अपने, क्योंकि फेमिलियल फैक्टर्स भी हैं, कईयों को फैमिली में है कि डिलीवरी के बाद इस तरह हो जाता है, और प्लस पर्सनल फैक्टर्स है कि उनकी डाइट, उनका हीमोग्लोबिन, एक्सेट्रा। सही, अच्छा ठीक है। मोल्स के ऊपर जो अक्सर मेरे ख्याल है मोल्स पे हमने काफी बात कर लिया, फ्रेकल्स पे आ जाते हैं। फ्रेकल्स, मुझे ये बताएं नाजिया, एक चीज होती है जिसे आप पिगमेंटेशन भी कहते हैं, जिसको तिनके आपके मुंह पे होते हैं, वो डिफरेंट है और फ्रेकल्स डिफरेंट? देखिए, फ्रेकल्स जो होते हैं, जिस तरह का तकरीबन आपने ये शर्ट पहना है, सिर्फ जरा सा डार्क कर लीजिए, जरा सा लाइटिश गोल्डनिश ब्राउन कलर के छोटे 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 डॉट्स को फ्रेकल्स कहते हैं। ठीक है, इससे लेकिन गोल्डन कलर के नहीं। पिगमेंटेशन देखें, ये भी पिगमेंटेशन का एक टाइप है। पिगमेंटेशन इज बेसिकली द कलर, चाहे वो कम हो या ज्यादा। अब उसकी टाइप है, चाहे मिलाजमा है तो वो पूरा एक पैच होता है, जैसे ब्लश ऑन टाइप का एरिया का, वो मिलाजमा हम बोलते हैं। डॉट्स डॉट्स आ जाए तो वो फ्रेकल्स होते हैं। ठीक है, मिलाजमा अमूमन जरा डार्कर टिंच पे जा रहा होता है, फ्रेकल्स हमेशा गोल्डनिश ब्राउनिश हनी कलर जैसा हम बात करते हैं। कैरामलाइज इस कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं ऑन द सन एक्सपोज एरियाज।
یہ سب سے امپورٹنٹ. جیسے ہاتھ کے یہ حصے، یہ آپ یہ فیس آ گیا، کچھ لوگوں کے اس ایریا کے اندر بہت ساری جگہوں پہ فریکلز آتے ہیں، اور یہ آپ کے تقریباً ان لوگوں پر آتے ہیں جن کی فیرر اسکن ٹائپس ہیں، جیسے ہمارے پاکستان میں بھی ہے اور باہر کے ملکوں میں جو انگلش ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ جتنا باہر نکل رہے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ آ رہا ہے، کیونکہ وہ سن ایکسپوز ایریاز ہے. ایسے لوگوں کو سن پروٹیکشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے یہاں خصوصاً گلگت اور ہنزا کے لوگوں پہ اکثر اوقات یہ ہو رہا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے ان کو بہت زیادہ. ہاں ان کو یہ ہوتا ہے، اور بہت ارلی رنکلنگ آ جاتی ہے آئی کے قریب.